Supreme Court refuses to entertain Jamia and AMU students' plea, asks the petitioners to approach the respective high courts and says that if not satisfied, then move the Supreme Court. Delhi police arrests 10 people in connection with the violence and arson in the national capital on Sunday. No student is arrested. A video of the night of December 15th is released. Officers are seen appealing for peace and calm despite the provocations. The police hints at a conspiracy angle and says that the protesters were ready with wet blankets. Stone pelting did not look spontaneous. The situation in Assam improves substantially. Curfew in Guwahati is completely withdrawn. Broadband internet services resume from today. The Supreme Court adjourns the hearing on the review petition of Akshay, who's been convicted in the Nirbhaya case of murder and rape and was awarded the death penalty. Now that case is going to be heard tomorrow. Delhi court has also adjourned the arguments on the quantum of punishment in the former MLA Kuldeep Singh Sengar in the Unnao rape case to December 20. The campaign has intensified for the fifth and the final phase of the Jharkhand Assembly polls. Addressing an election rally, Prime Minister Narendra Modi stresses the Citizenship Amendment Act doesn't snatch away the right of any Indian citizen. Leaders of other parties are also campaigning in the state. A special court has handed the death penalty to the former Pakistani military dictator Pervez Musharraf in a high treason case. Musharraf was facing charges related to the imposition of extra constitutional emergency in November of 2007. Namaskar and welcome to the news. I'm Mark Lynn. Here's our top story. The Supreme Court on Tuesday said that high courts should be approached first on pleas alleging the police atrocities on persons protesting against the amended Citizenship Act. The court also asked as to how buses were burnt during the protests. A bench headed by the Chief Justice S.A. Bobde commenced the hearings on the pleas, including that an alumni association of Jamia Millia Islamia University. They also have appealed. The bench said that it did not want to spend time knowing the facts, asking the petitioners to go to the courts below first. The counsel for the petitioners said that the FIR has been filed. One after another, FIRs have been filed against students at AMU Jamia, upon which the Supreme Court said that these FIRs are filed under the law for offences such as destruction of properties. Further, the Supreme Court made it clear that it is not going to rely on newspapers to arrive at a judicial decision, while refusing to consider the statements of the Jamia University Vice-Chancellor to the press. Meanwhile, the Home Ministry has clarified that there was no bullet fired by the police in their controlling of the violent protests against the Citizenship Amendment Act at the Jamia Millia Islamia University on Sunday. 10 persons with a criminal background were detained and more antisocial elements are being tracked as per the information of a Delhi police report which was submitted to the Home Ministry. Several vehicles, including buses, were burnt down and public property was destroyed during the protests on Sunday. According to a senior police officer, no student has been arrested. The university had turned into a battlefield on Sunday as the police entered the campus and also used force following a protest against the Citizenship Amendment Act, which led to violence and arson in which 4 DTC buses, 100 private vehicles and 10 police bikes were damaged. Meanwhile, the Delhi police released a video on the 15th of December, where the Joint Commissioner of Police is making an appeal to the Jamia students to stay calm and to stop pelting stones. Let's listen to what that video says. मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग बिल्कुल पत्थर नहीं चलाएं। लगातार ये पत्थर हम लोगों पे आ रहे हैं। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं। आपके बीच जो ये गलत लड़के पहुंचे हुए हैं और जो पत्थर, ट्यूब और ये बम, पत्थर और ट्यूब जैसी ट्यूबलाइट वगैरह ये सब फेंक रहे हैं, गाड़ियों को तोड़-फोड़ रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बाहर निकलें, आपके नुमाइंदे बाहर आए और हमसे बात करें। यहाँ पे तमाम अफसर, तमाम लोग हैं जो आप लोगों की हिफाजत के लिए हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं करे जिससे
इस यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम हो, इस इलाके का नाम खराब हो। ये लड़के लगातार पत्थर मार रहे हैं। अब पुलिस बिल्कुल, हम लोग किसी पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप लोग मैं ये चाहूंगा कि जो लोग यूनिवर्सिटी प्रशासन के हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी के ग्रुप लीडर्स हैं, देखिए साइड में से पत्थर मत मारिए, नहीं तो फिर मजबूरन हमें फिर बल का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ये फिर जो पत्थर आ रहे हैं, ट्यूब आ रही है और ये सारी चीजें जो है, इसको आप बिल्कुल नहीं करें। ये दोनों तरफ से जो आ रहे हैं, ये आप ही के लिए नुकसानदेह होगा। ये यहाँ की शांति व्यवस्था को बरकरार नहीं करने देगा। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आए और बाहर निकलें और हम लोगों के साथ बात करें, या अपने साथ जो ये लोग हैं उनको रोकें। ये बोतल फेंकने का, ये ट्यूब फेंकने का बिल्कुल वो नहीं करें। उसको एक तरफ जाए, या तो उस साइड जाए, या पीछे से और फोर्स आ जाएगा। हमने तो सारे पिलर्स पे फंस जाएंगे। तो बोलो कि पीछे से और फोर्स लीजिए, ऑन कर लीजिएगा। मैं यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि वो लोग आए। ये बच्चा आगे नहीं आए, ये बच्चा बिल्कुल आगे नहीं आए। गैस गन नहीं है, गैस गन चला दें सर? हैं? बिल्कुल नहीं। सर ये लड़के यही नजदीक में है सर। ये गैस सर आगे, ये पेड़ के पीछे सर, ये रहे ना। बोलो कि गैस गन और चाहिए ना। बच्चों, मैं ये गेट नंबर 7 और 8 के बीच में खड़ा हूँ। बच्चों, आप लोग बाहर नहीं निकले। बच्चों, पत्थर नहीं मारे, ट्यूब नहीं मारे, बोतल नहीं फेंके। आप लोग अपना, बच्चों कोई बात नहीं, आप लोग अपना अंदर शांति से बैठे रहे, बिल्कुल पत्थर नहीं चलाए, ट्यूब और ये बोतलें नहीं मारे। पानी ले लो। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, मैं आप लोगों से बेटा ये गुजारिश करता हूँ, मैं 6 नंबर गेट के सामने आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये दोनों तरफ से जो पत्थर आप लोग चला रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आपके प्रोक्टर, आपके जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उन सबसे हमारी बात हो रही है। आप लोग भी अमनो अमान रखें। ये जो बच्चे बाहर आए हुए हैं, मैं कहूंगा कि अंदर जाएं। ये पत्थर बेटा बिल्कुल नहीं चलाएं। And meanwhile, protests continue outside the Jamia Millia Islamia University. This is the second consecutive day of peaceful protests after the demonstration on Sunday had turned violent. Some residents and parents of the students from nearby areas also came out to support the protesters. And also, the students are demanding the withdrawal of the CAA. Well, the additional DCP of Southeast, Kumar Gyanesh, has given an eyewitness account of what happened at Jamia. He said that some protesters, they were carrying wet blankets and putting them on tear gas shells to minimize their impact. The police had concurred that these things do not happen on the spot, and he said that it also shows that it could have been a conspiracy. जो 2 दिन पहले वायलेंस काफी अधिक हुआ, उस पे जो केस दर्ज हुआ, उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इनफैक्ट जो सारी चीजें उभर के सामने आई हैं, फर्स्ट डे भी हम लोगों ने आपसे पहले शेयर किया है कि जिस तरह का पथराव और रिएक्शंस और उनका हमला था पुलिस पर, वो स्पॉन्टेनियस नहीं, वेल प्लान्ड लग रहा था। मैं उस ऑपरेशन का हिस्सा था, तो मैंने देखा कि कई लोग गीले कंबल कैरी कर रहे थे और टीयर गैस शेल जब उनको बहुत हैवी पथराव होने पर उनको पुश करने के लिए जब आंसू गैस का प्रयोग हो रहा था, तो गोले जो जा रहे थे उसको गीले कंबल से ढक रहे थे, पेट्रोल बॉम्ब भी फेंक रहे थे, और ये सब चीजें ऑन स्पॉट नहीं होती हैं। तो इससे जरूर ये क्लियर हो रहा था कि वेल प्लान्ड या फिर रादर ये सोची समझी साजिश है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में भी अभी तक तो उसी दिशा में हमारी तफ्तीश जा रही है।
Appealing to the students protesting against the Citizenship Amendment Act, the Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi said that students have a right to protest but should not believe in rumours being spread by the opposition parties for their own political benefits. And moving on now, let's go across live. Amit Shah, the Home Minister and President of the BJP, is speaking at a Bharat Vandana Park at Dwarka. Let's go across live. दोनों हाथ उठाकर बोले भारत माता की। मंच पर उपस्थित देश के शहरी विकास और नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमान हरदीप सिंह जी पुरी, दिल्ली राज्य के उपराज्यपाल श्रीमान अनिल बैजल जी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का सुकान जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, ऐसे हमारे भाजपा अध्यक्ष और सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद जो यहाँ की जनता के लिए हमेशा हर फोरम में अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं, ऐसे श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, श्रीमान पीके गुप्ता जी, तरुण कपूर जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को नमस्कार। आज एक कार्यक्रम जो भारत वंदना पार्क का जो यहां पर उद्घाटन किया है, मैं श्रीमान हरदीप सिंह पुरी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी दूरदृष्टि के साथ आज जिस काम की शुरुआत की है और उसका जब समाप्त होगा उसका लक्ष्य भी तय किया है। और ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पर ये पार्क का आज भूमि पूजन होने जा रहा है कि आने वाले दिनों में न केवल दिल्ली, देश के नक्शे पर ये पार्क बहुत बड़ा टूरिज्म का एक प्रकार से बहुत बड़ा सेंटर बनने जाएगा। दिल्ली में देश भर से जो यात्री आएंगे वो यहीं पर जाए बगैर दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे। और एक क्षेत्र का नाम भी जब डीडीए ने उसको बनाने का फैसला किया, एक उपनगर बनाने का, तब इसीलिए द्वारिका रखा है। दिल्ली में आने का द्वार ये द्वारिका क्षेत्र के अंदर ये पार्क, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। यहां पर ढेर सारी बातें भारत वंदना पार्क के लिए हुई है, मैं इसके लिए बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता। लगभग 200 एकड़ भूमि में 525 करोड़ की लागत से ये पार्क बनेगा। इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण, चाहे आईजीआई एयरपोर्ट हो, मेट्रो स्टेशन हो, ये पार्क हर यात्री को आने के लिए सरलता से आने का रास्ता उपलब्ध कराएगा। और ढेर सारी सुविधाएं, जैसे प्रवेश ने कहा, 3 साल से 100 साल तक के हर व्यक्ति को आकर्षण का केंद्र यहां मिल जाए, इस प्रकार की सुविधाएं करी। और इसमें भारत के समग्र सांस्कृतिक मानचित्र को भी यहां पर सबके सामने उपलब्ध कराने का काम डीडीए ने करा है, शहरी विकास मंत्रालय ने किया है। इसलिए मैं फिर से एक बार सभी को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अभी प्रवेश जी ने अनधिकृत कॉलोनियों की बात, मैं ये अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 1731 कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोगों को कहना चाहता हूं
कि आपको 5 साल देरी से अधिकार मिल रहा है, तो इसका एकमात्र कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी की सरकार है, जिसने देरी कर कर आज तक अनधिकृत कॉलोनियों का काम नहीं करने दी। अगर दिल्ली सरकार 11 साल के अंदर मोदी सरकार की तरह संकल्प कर लेती तो आज ये काम कब का समाप्त हो चुका। और मैं श्री केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं कि आप गलत प्रचार कर कर अनधिकृत कॉलोनियों के भाइयों बहनों को गुमराह नहीं कर सकते। यहां प्रवेश बैठा है, केजरीवाल जी डेट तय कर ले, प्रवेश वर्मा आपकी देरी का कच्चा चिट्ठा लेकर आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। जगह और टाइम आप तय करो। मैंने डिटेल प्रेजेंटेशन दी, कैसे कैसे इसको रोका गया, षड्यंत्र के तहत रोका गया, क्योंकि उनको उसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती थी कि जितनी परेशानी में लोग होंगे, केंद्र सरकार को आरोप मढ़ने के लिए मटेरियल काम में आएगा। परंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का संकल्प का परिचय देते हुए इसको एक कानून बनाकर सभी कानूनी अड़चनों से बाहर निकाला। मैंने प्रेजेंटेशन देखा है, 3 बार देखा है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रेजेंटेशन को। लगभग 30 कानूनों को इधर उधर करके उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव रास्ता निकालकर ये बिल जो संसद में पेश किया, आज 40 लाख लोगों को अपने घर का अधिकार देने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे सारे सांसद अपने सुझाव लेकर मनोज तिवारी की अध्यक्षता में आए थे। उनके सारे प्रैक्टिकल सुझावों को भी इनकॉर्पोरेट कर एक समग्रता से पूरी योजना को बनाया गया। और इसका परिणाम ये आया कि आज जैसे भाई हरदीप सिंह जी ने कहा, 12,000 से ज्यादा लोगों की रजिस्ट्री हो गई। और मैं अपील करना चाहता हूं सभी स्वयंसेवी संगठनों को और अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले सभी भाइयों बहनों को जल्दी से जल्दी अपनी ई रजिस्ट्री इस पर कराएं। और रेट भी ऐसे लगे हैं कि किसी को कहीं कोई बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत कम रेट के अंदर आपका घर आपको मिल जाने वाला है। और आगे उनकी सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था जो लेटेस्ट अर्बन डेवलपमेंट नॉर्म्स के हिसाब से है, उसमें भी जो रिजर्व जमीन पड़ी है, आरक्षित जमीन अभी बची हुई है, इसके अंदर भी इसका प्लानिंग करने वाले हैं। और मित्रों, मेरा यहां उपस्थित है वो सभी भाइयों बहनों को भी अपील है कि आप सभी लोग इस बात को लेकर आगे बढ़े और इसको उनकी रजिस्ट्री कराने के लिए सभी लोग उनकी मदद में जाएं। मित्रों, आज दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने ढेर सारे काम दिल्ली के विकास के लिए करे हैं। मैं यहां पर इसका सूची गिनाने जाऊंगा तो 15-20 मिनट में समाप्त नहीं होगा। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जैसे हरदीप सिंह जी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है भाई? क्योंकि श्री केजरीवाल को डर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अगर यहां पर लागू की, गरीबों को अपने आवास मिले तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ जाएंगे। भैया केजरीवाल, आप कितना भी योजना बना लो, इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिल्ली के अंदर मिलने वाला है। क्योंकि जनता आज आपको जान चुकी है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर गरीब लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, अनधिकृत कॉलोनियों में लेते हैं, उनका अपना इलाज कहां कराएं? एक गरीब मां का बेटा बीमार पड़ जाता है, एक गरीब बेटे का बाप बीमार पड़ जाता है, कहां जाए वो?
2 दिन तो अस्पताल में जाते हैं, कुछ टेस्ट टूस्ट कराते हैं, मगर जो बिल आता है तो बाप ही बेटे को कहता है बेटा घर पे ले चल, भगवान ने जो चाहा होगा होगा, मैं तो मरूंगा ही, मैं रोग से मरूंगा, मेरे पीछे ऋण से तेरा पूरा परिवार मर जाएगा। देश भर के इन गरीबों के लिए, 50 करोड़ गरीबों के लिए, 10 करोड़ परिवारों के लिए मोदी जी आयुष्मान भारत की योजना लेकर आए, जिसमें 5 लाख तक का पूरा खर्चा, 5 लाख तक का पूरा खर्चा। इसके अंदर सारे टेस्ट, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, सारी दवाइयां, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा और घर तक पहुंचाने का 300 रुपया ऑटो का खर्चा भी शामिल है। ये 5 लाख रुपया ये परिवार के लिए, कई परिवारों के लिए आयुष्य देने वाला, उनके जीवन को बढ़ाने वाला। देश में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने ऑपरेशन करा लिए, मगर दिल्ली की जनता को इसका फायदा इसलिए नहीं होता कि केजरीवाल जी इससे भी डर रहे हैं। दिल्ली की जनता को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी को, क्या दोष है दिल्ली की जनता का कि मोदी जी जो योजना लाए हैं वो उनको मिल नहीं रही, और क्यों रोक कर रखा है? क्या आप मानते हैं कि आप रोक कर रखोगे, राजनीति करोगे, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करोगे और जनता चुपचाप सहन करेगी? जिनको ये प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए था, वो आपको पूछेंगे नहीं? जो अपने बूढ़े बाप का इलाज कराना चाहते थे, जो मां अपने छोटे बच्चे का इलाज कराना चाहती थी, वो आपको नहीं पूछेंगे? एक बार चुनाव के मैदान में आइए केजरीवाल, ये सारे लोग आपका जवाब मांगने के लिए वहां खड़े हैं। आप ढेर सारी चीजों को रोका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के काम दिल्ली के विकास के लिए किए हैं। पुलिस भर्ती में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, अमृत प्रकल्प लगभग 18 प्रकल्प 802 करोड़ के, स्मार्ट सिटी 71 प्रकल्प 1331 करोड़ के, दिल्ली मेट्रो सिर्फ 2014 के बाद 112 किलोमीटर नई मेट्रो लाइंस का लोकार्पण 11,000 करोड़ की लागत से किया और 51 किलोमीटर नई मंजूरी देकर उसको कर रहे। पूरे दिल्ली में खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया और बदरपुर थर्मल प्लांट कोयले की कमी के कारण बंद करना पड़ता था, आज उसको भी अच्छे से हम चला रहे। जीटीबी अस्पताल के लिए 200 करोड़ रुपया देना, 90,000 करोड़ की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की परियोजना, 1857 का संग्रहालय, NH 148A पर यातायात को सरल बनाने के लिए 35,000 करोड़ की 7 किलोमीटर तक 6 लेन का एलिवेटर कॉरिडोर, कालीदी कुंड से महरौली तक पूरी ट्रैफिक की समस्या इससे हल हो गई। दिल्ली मेरठ हाईवे और ईस्टर्न कॉरिडोर, मुकरबा चौक, अनेक योजनाएं लगभग 50,000 करोड़ रुपया इसके लिए दिया है और आईपी विश्वविद्यालय को भी शुरू किया है। ढेर सारे काम करें। मैं केजरीवाल जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे घोषणा पत्र को लेकर आप एक एक चीज को ठीक कर चेक कर सकते हो कि हमने क्या कहा था और क्या किया, और आपका घोषणा पत्र लेकर आ जाओ जरा। अभी दिल्ली में बहुत सारे विज्ञापन देख रहे हैं, फुल पेज विज्ञापन, ये कर दिया, दिल्ली को बधाई, दिल्ली को बधाई, फला को बधाई, ढीका को बधाई, हर क्षेत्र के। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, भाई ये बधाई चुनाव आए वक्त आप क्यों दे रहे हो? पूरे 5 साल में क्यों नहीं दी? और आप शुरुआत कर रहे हो, लोकार्पण नहीं कर रहे हो, काम को समाप्त नहीं कर रहे हो। सबको मालूम है जो शुरुआत होती है वो सरकार बनने के बाद कुछ नहीं होने वाला। आपने वादा किया था, 5 साल सरकार चलाई, ये सारी योजनाएं क्यों समाप्त नहीं हुई? इसका जवाब श्री केजरीवाल ने देना पड़ेगा। और मैं दिल्ली की जनता को कहने आया
कि प्रवेश ने ठीक ही कहा है, ये विकास की पेटी के ताले में 2 नंबर तो ठीक है, तीसरा नंबर 0 वाला है। ये 0 वाले नंबर को जरा ठीक कर दीजिए, विकास की पेटी का दरवाजा खुल जाएगा और दिल्ली सबसे विकसित क्षेत्रों के अंदर शामिल हो जाए। और तीसरा नंबर है ये दिल्ली सरकार का, इसको भी कमल फूल की एक सरकार बना दीजिए। मोदी जी पर भरोसा करिए, मैं आपको कहता हूं 5 साल के अंदर दिल्ली की सारी समस्याओं का समाधान दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने से। और कैसे कैसे मुद्दे पर राजनीति हो, कैसे कैसे मुद्दे पर। अभी हम एक बिल लेकर आए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। इसमें क्या प्रोविजन है? इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रोविजन है। और पूरा समूचा विपक्ष आज देश की जनता को गुमराह करने पर तुला। मैंने संसद के अंदर का आज फिर से कहने वाला हूं कि इस देश के किसी भी माइनॉरिटी की व्यक्ति की नागरिकता जाने का सवाल ही नहीं है। ये बिल में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान। और जो वहां अत्याचार के चलते यहां है, मेरे सिख भाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ईसाई है, हिंदू है, कहां जाए वो? कौन शरण देगा? और कांग्रेस पार्टी को तो मैं विशेष कर कहना चाहता हूं, ये नेहरू लियाकत समझौते का हिस्सा था जिसका 70 साल तक आपने पालन नहीं किया, क्योंकि आप वोट बैंक को बनाना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच में जो समझौता हुआ था उसका पालन आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है और लाखों करोड़ों लोगों को शरण देकर नागरिकता देने का काम किया। और मैं सभी विद्यार्थियों को भी कहना चाहता हूं कि बिल का अभ्यास करिए। आपके पास जो सूचना है वो ठीक नहीं है। ये बिल किसी की भी नागरिकता लेने के लिए कोई प्रावधान रखता ही नहीं है। किसी की नागरिकता, विशेषकर माइनॉरिटीज की, मुस्लिम भाइयों बहनों की नागरिकता कहीं नहीं जाने वाली है। जो भारत के बासिंदे, जो भारत के रहने वाले, और नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको स्पष्ट किया है। मैं आज दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, ये विपक्ष, केजरीवाल एंड कंपनी और कांग्रेस पार्टी जो गुमराह कर कर दिल्ली की शांति को, पानी में जो कंकर डालने का काम कर रहे हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। और मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूं, साइट पर एक्ट पड़ा है, इसको पढ़ लीजिए। अगर कोई प्रावधान के अंदर किसी को अन्याय होने वाला कुछ दिखाई पड़े तो हमें बताइए आप। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो सबका साथ, सबका विश्वास में भरोसा करती है, किसी के साथ अन्याय नहीं करती। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि जो 70 साल से यहां शरणार्थी बनकर आए हैं, हजारों अफगानिस्तान के सिख भाई दिल्ली के अंदर रहते हैं, जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, ना पीने का पानी मिल सकता है, ना बिजली मिल सकती है, ना नौकरी मिल सकती है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती। पाकिस्तान से आए हुए कई दलित भाई बहन दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर पर रहते हैं। ये जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टियों को जाइए, जरा इनकी सुन लीजिए, इनके आंख के आंसुओं को देखिए। 30 40 साल से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आने को हुई, नागरिकता नहीं मिली। और मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है करो, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार फर्म है। इस सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, वो भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया के अंदर जिएंगे। ये बिल के अंदर किसी को अन्याय करने का कोई प्रावधान नहीं। मित्रों, अतः मैं आज फिर से एक बार हरदीप सिंह जी को ये भारत वंदना पार्क के लिए तो बधाई देता ही हूं, मगर जिस शिद्दत के साथ इन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने का काम
द्रुत गति से, स्पीड से हाथ में लिया है। इसके लिए समग्र दिल्ली वासियों की ओर से मैं उनको लाख लाख बधाई देना चाहता हूं। और जहां झुग्गी वहां मकान, ये प्रोजेक्ट के लिए भी लगभग 40,000 के आसपास परिवारों को कुछ ही समय में उनका अलॉटमेंट मिले, ड्रॉ हो, इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने करी है। इनके नेतृत्व में दिल्ली बहुत गति से डेवलपमेंट के मामले में आगे बढ़ रही है। एक कमी है, दिल्ली सरकार उनका सहयोग नहीं करती है। मेरा आप सबसे दिल्ली के वासियों से निवेदन है कि इस बार चुनाव के अंदर यहां पर भी कमल ला दीजिए तो तीनों अंक मिल जाएंगे और दिल्ली के विकास का रास्ता खुल जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेषकर द्वारका क्षेत्र के नागरिक भाइयों बहनों को। आप सभी को ये पार्क जब बनेगा तब एक बहुत बड़ा टूरिस्ट केंद्र भी बनेगा और आप सबके लिए भी परिवार को लेकर आने के लिए एक अच्छा स्थान बनेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।